السلام علیکم، میں ہوں صوبیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز کارنر. اور نیوز کارنر کے پینل پہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت اہم سیاسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی بتا دیں کہ وہ سیاسی اور سماجی رہنما بھی ہیں. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ بھی مل گیا ہے UC69 چیئرمین کا. اور جی میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر ارشاد احمد خان صاحب کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ ڈاکٹر شکر اللہ کا. آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں مدعو کیا اور بلایا آپ نے ساتھ. آج ہم نے سوچا کہ آج ہم ظاہر ہے حکومت ہے نون لیگ کی اور اس کے حوالے سے جو حالات ملکی ہمارے جو اتنے بحران کا شکار ہوئے ہیں پوری ہماری نیشن جو ہے، تو اس سلسلے میں نے کہا آج ہم بات کرتے ہیں. اور ارشاد صاحب سے ہم پہلا سوال یہی کریں گے کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، اس حوالے سے تو پہلے ہمیں بتائیے گا تھوڑا بہت. دیکھیں، ٹکٹ تو بہت عرصے سے خواہش تھی اسلام آباد والوں کی کہ یہاں بلدیاتی الیکشن ہو، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قائدین کا، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا اور انجم عقیل خان صاحب کو، اور جتنے بھی ہمارے یہاں پر ہمارے سینئر ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھے اپنی پارٹی کے لیے قیادت کرنے کا موقع دیا. I8 سے، I8 ہماری UC ہے 69 وہاں سے. تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیوں آپ UC سے. میں یہ کہتا ہوں کہ سٹیپ بائی سٹیپ انسان سیکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اور لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے. ہمیں مجھے کبھی بھی کوئی لالچ رہا نہیں اپنی پارٹی سے کہ مجھے کچھ ایسے عہدے مل جائیں کہ جس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہوئی ہے، شہرت بھی دی ہوئی ہے، کوئی کمی ہے نہیں پہلے بھی ہمیں. تو ہم تو پھر بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے قائدین کا. اور دوسری بات یہ، آپ بات کر رہی تھی کہ سیاسی ماحول اور حکومت نون کی ہے، حالات تھوڑے بحران کا شکار ہیں، لوگ کشمکش کا شکار ہیں کہ ہونا کیا ہے. ایک طرف دوسری سیاسی پارٹی ہے جو اپوزیشن ہے، ان لوگوں نے ایک لانگ مارچ کا سلسلہ شروع کیا ہے. دوسری طرف سندھ حکومت ہے، وہ کسی اس میں نہیں ہے. اور لیکن وہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے جو وہاں پہ تباہ کاریاں ہیں، اس کی وجہ سے جو حالات ہیں، اوپر سے وفاق آپ کے پاس ہے، اس حوالے سے بھی آپ تھوڑا بہت بتائیے گا. دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ حالات تو بہت اچھے تھے ملک کے اور اچھے ہیں، لیکن جو عمران احمد خان صاحب اپنا ریوڑ لے کر کے پورے پاکستان کو جیم کیا ہوا ہے انہوں نے. حالانکہ ان کو چاہیے تھا، ابھی آپ نے سیلاب کی بات کی، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ محب وطن ہوتے اور پیار کرتے پاکستان سے اور پاکستان کے لوگوں سے، ان کو خیال کرنا چاہیے تھا جو اس وقت حالات ہیں بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، جو سیلاب زدہ لوگ ہیں جو سڑکوں پر پڑے ہیں، جو سردی سے ٹھٹر کے مر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کو بند کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو خرچہ اور کروڑوں روپے کا ان کی وجہ سے، اور جو یہ کر رہے ہیں ریوڑ پہ اپنے، تو یہی پیسہ اگر ان لوگوں پہ لگ جائے جو بے یارو مددگار روڈز پہ پڑے ہیں، اپنے گاؤں میں دیہاتوں میں پڑے ہیں، سیلاب زدہ ہیں اور جن کے گھر نہیں ہیں اور جو پریشان حال ہیں، کاش عمران احمد خان صاحب محبت کرنے والے ہوتے، محب وطن ہوتے، تو وہ خیال کرتے ان لوگوں کا، ان بھائیوں کا جو اس وقت بے یارو مددگار ہیں. دوسری بات آپ کر رہی تھی سندھ کی، تو سندھ بھی وہ حکومت، زرداری صاحب کی حکومت جو وہاں ہے، وہ بھی اپنے علاقے میں سندھ کی خدمت کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اس وقت سندھ میں بھی، اور پنجاب میں بھی کام ہو رہا ہے، اور پورے پاکستان میں کام ہو رہا ہے. آپ بات کر رہی تھی مسلم لیگ کی حکومت ہے، میں کہتا ہوں یہ عوام کی حکومت ہے، یہ پاکستان کی حکومت ہے. یہ جو نون ہے، مسلم لیگ نون جو ہے، یہ پاکستان کی پارٹی ہے، پاکستان سے پیار کرنے والوں کی پارٹی ہے. اور اس وقت تو ویسے بھی PDM کی حکومت ہے. PDM تو ایک خوبصورت گلدستہ ہے جس سے مہکے گا انشاءاللہ پورا پاکستان، اور مہک رہا ہے پورا پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ آپ دیکھتی جائیے کیسے کیا ہونے والا ہے. اچھا، مہک رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان مہک رہا ہے، لیکن اس وقت تو بلبلا رہا ہے بیکاز مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لوگ پریشان حال ہیں کہ اس مہنگائی کی روک تھام کیسے کی جائے. اور دوسری طرف روڈز کو روک دیا جاتا ہے، بلاک کر دیا جاتا ہے ایک اپوزیشن کی طرف سے. نہ کوئی کام پہ جا سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے، نہ حکومت اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے، نہ اپوزیشن کچھ کر رہی ہے. سب لگتا ہے کہ اپنی الزام تراشیوں میں مصروف ہے. اور یہ جو سیاست میں الزام تراشی کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور جو زبان اب استعمال کی جاتی ہے، کیا اس کی روک تھام کے لیے کچھ ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ ملک کی بحران کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک نیا ٹرینڈ دیا ہے لوگوں کو، عوام کو، ینگسٹر کو. میں سمجھتا ہوں ینگسٹر بیچارے جنہوں نے ان کے ساتھ 22 سال 24 سال گزارے، حالانکہ ان کو جب ان کی حکومت آئی قریب بھی نہیں آنے دیا. قریب کون لوگ تھے؟ وہی مفاد پرست ٹولہ جو دوسری پارٹیوں سے نکالا ہوا لوگ تھے، جو چوچو کا مربع تھا وہ انہوں نے لیا اور ان کو وزارتیں بھی دی اور ان کو اقتدار دیا. اس کی وجہ سے انہوں نے خراب کیا پورے ملک کو، پورے اداروں کو. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کبھی
हिंदुस्तान की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना बदनाम इन्होंने हमारे इदारों को किया, हमारी फ़ौज को किया, जितना कुछ खिलवाड़ ये हमारे पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और ये होश के नाखून ले ले। अभी भी ये ना समझे तो फिर वक्त गुजर जाएगा, और वक्त बड़ा जालिम होता है। जब वक्त गुजरता है फिर एहसास होता है इंसान को कि मैंने क्या किया। जैसे इन्हें 4 साल ये इक़्तिदार में रहे, उस वक्त इक़्तिदार के नशे में भूल गए कि इन्होंने आवाम की खिदमत करनी है। ये नया पाकिस्तान का जज्बा लेकर के आए। लोगों की ये होप थे, नौजवानों की होप थे कि पता नहीं दूध और शहद की नहरें बहा देंगे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब। लेकिन इन्होंने क्या किया 3 साल 4 साल, वही मैं मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जेलों में डाल दूंगा। डालो जेलों में डालते रहे, लेकिन सबूत कुछ ना कर सके। लोगों को रिलीफ मिला अदालतों से, इन्होंने किसी को रिलीफ नहीं दिया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि अभी जो बाशऊर लोग हैं वो इनको छोड़ गए। जो अभी लाउबाली, जिनको मैं कहता हूँ यंगस्टर, जो बच्चे जिनको अभी अकल ज़्यादा नहीं है, जो एक जज्बा वही नए पाकिस्तान वाला जज्बा है वो उनके साथ मौजूद है। क्योंकि उन्होंने होप ऐसी दिलाई है कि नया पाकिस्तान मैं बना दूंगा। 3 साल 4 साल में उन्होंने क्या किया, कौन सा पाकिस्तान बनाया? मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की तबाही का बायस बने हैं ये जो महंगाई की आप बात कर रहे थे, महंगाई किसकी वजह से हुई? क्योंकि जब एक कोई बिल्डिंग बनाने लगता है, अगर उसकी बुनियाद टेढ़ी हो जाए तो घर टेढ़ा हो जाता है। जब इनको हुकूमत मिली, इन्होंने ऐसे काम किए कि जिससे पूरे इदारे हिल गए, पूरा मुल्क हिल गया। लोग जो टूरिज़्म की बात ये करते थे, टूरिज़्म आना छोड़ गए, कारोबार बंद हो गए, हर चीज़ बंद हुई। और अब जब ये हुकूमत से बाहर है, इनको वही याद आता है कि ये क्या हो गया, मैं तो वज़ीर आज़म था, मैं तो वज़ीर आज़म हाउस में लेटता था, वहाँ नवाब था मैं, अब मैं सड़कों पे हूँ। तो वो अभी इक़्तिदार, अभी वही कह रहा हूँ, इल्जाम तराशी जो हो रही है कि एक पार्टी दूसरी पे इल्जाम लगाती है, दूसरी तीसरी पे। जब वो हुकूमत में होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, तो दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो कहती है पिछलों ने कुछ नहीं किया, पिछले आते हैं तो वो कहते हैं अगलों ने कुछ नहीं किया। इसमें खान साहब लड़ रहे हैं, तो नेशन जो है वो पिस रही है। उसके लिए क्या आप लोगों का लाया अमल है? वो जो महंगाई है किस तरह रोकेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ खान साहब इक़्तिदार और मफाद की जंग लड़ रहे हैं इस वक्त। हाँ। मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों बहनों माओ बेटियों को ये आपके चैनल के थ्रू मैसेज दूंगा कि खान साहब इक़्तिदार और मफाद की जंग लड़ रहे हैं, आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं, मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इनको आज वज़ीर आज़म बना दो दोबारा, फिर ये भूल जाएंगे सबको, फिर ये भूल जाएंगे कि मैंने क्या वादे किए थे, ये भूल जाएंगे कि मैंने घड़ियाँ कहाँ बेची थी, फिर ये नई घड़ियाँ तलाश करेंगे, फिर नई घड़ियाँ बेचने के लिए जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अब अवाम इनको इक़्तिदार देने वाली नहीं है, और ना ही ये पाकिस्तान में दोबारा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। इंशाअल्लाह ये इस्लामाबाद भी नहीं पहुँच सकेंगे, मैं ये भी आपको बता दूँ। अच्छा, चलें, आप ये दावा कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते हैं, जो कि उनका लॉन्ग मार्च कहा गया है कि 26 तारीख को वो यहाँ पर होंगे और यहाँ से फिर वो जो एक सिलसिला है उनका शुरू होगा। अब देखना ये है कि उसके बाद क्या लाया मतलब होगा, क्योंकि बहुत देखा जा रहा है कि लोग जो हैं उनकी तरफ पीटीआई की तरफ मरगूब होते जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, नून लीग की तरफ में ये जो पार्टीबाजी शुरू हो गई है और उसमें अवाम की तरफ नहीं देखा जा रहा, सिर्फ पार्टीबाजी देखी जा रही है। और हम देख रहे हैं कि बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मईशत जो है हमारी सिफर होती जा रही है और हम दुनिया के सामने एक तमाशा बन के रह गए हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाशा तो खान साहब ही बने हुए हैं, हमारा मुल्क तमाशा नहीं बना। क्योंकि मैं कहता हूँ हमारा नारा ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, तो हमसे हमारी इज़्ज़त है, पाकिस्तान से ही हमारी इज़्ज़त है। तो खान साहब को काश ये समझ आ जाए तो फिर वो वापस अपने लोगों को लेकर के वहीं चले जाएं जहाँ ये लोग, जहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने इंतशार, खान साहब ने इंतशार, ये इंतशार ख़त्म होगा तो मुल्क में अमन हो जाएगा। जब अमन होगा तो फिर मुल्क तरक्की भी करेगा, फिर मुल्क हमारा इस भंवर से, महंगाई के भंवर से भी बाहर आएगा। क्योंकि ज़रा स्टेबल होने लगते हैं तो खान साहब एकदम अनाउंस करते हैं आज मैं आ रहा हूँ। आप ये देखिए कि लाहौर से आने में 1 माह लगा दिया इन्होंने। अब 1 माह में जिस शहर से गुजरते हैं, एक आधे इंसान की कुर्बानी दे करके गुजरते हैं। कितने लोग, कितने बच्चे, कितने, हमारी रिपोर्टर एक बेचारी शहीद हुई तो वो भी किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी। जो बच्चे गिर करके, जो जिस बच्चे को गोली लगी वो भी किसी का बेटा था, बाप था। तो खान साहब काश अभी भी बाज आ जाएं, लोगों के बच्चों को ना मरवाएं। खुद तो आप बैठ गए कंटेनर में जाकर के, अभी शीशा, मैं देख रहा था कि इनका जो घर है लाहौर में उसमें शीशा, बुलेट प्रूफ शीशे लगाए जा रहे हैं चारों तरफ। क्या खान साहब सिर्फ आप ही की जान कीमती है? जो हमारे बच्चे बच्चियां, माएँ बहनें आपके जलसे में आती हैं, क्या वो बच्चे नहीं हैं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी ज़िंदगी उतनी कीमती नहीं जितनी कीमती आपकी है? आपको तो मिल जाएगा इक़्तिदार, आप तो इक़्तिदार के लिए आए हैं। इन बच्चे बच्चियों को क्या मिलेगा जो 22 साल 24 साल पहले भी आपके साथ लगे रहे और अब फिर आपके साथ है? क्योंकि उनको एक उम्मीद थी आपसे,
जो कि तोड़ दी उनकी आप उम्मीद आपने। अब अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि हमारी एक जो सहाफ़ी जर्नलिस्ट थी वो शहीद हो गई, और जो हमारे अरशद शरीफ साहब जो जिनको भी कहा जा रहा है कि वो भी शहादत का रुतबा हासिल कर सके इन्हीं मामलात की वजह से, इन्हीं हालात की वजह से। लेकिन आजकल जो एक मौजू हमारे ज़ेर बहस है वो ये है कि एक इल्ज़ाम लगाया गया है, या आप कहें कि कत्ल का कहा गया है कि ये सारी साजिश जो है वो नून लीग की तरफ से की गई है लंदन में बैठ के। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि सियासी स्टंट इस्तेमाल कर रहे हैं खान साहब और खान साहब के मीडिया के लोग, क्योंकि मसला ये है कि जब सियासी लोग मिलते हैं तो उसमें जलसा जुलूस या कोई मीटिंग होती है, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, वो आपके साथ चल पड़ते हैं और साथ में तस्वीर बन गई। अब उस शख्स की एक तस्वीर वायरल करके अब ये शो ये करना चाहते हैं कि मेरा कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इतने थर्ड क्लास आदमी को कहेंगे कि जाओ आप गोलियां मारो, और उनको ज़रूरत क्या है? वो तो प्यार करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के इदारों से, और अल्हम्दुलिल्लाह यही एक कायद है जो इंशाल्लाह सुरखरू करेगा पाकिस्तान को। ये इल्ज़ाम तराशियाँ, ये सब कुछ अपनी मौत आप मर जाएंगे। खान साहब के जितने भी लोग हैं जो ये ट्रेंड चला रहे हैं, लड़ाई मार कुटाई कत्ल व गारत वाला, ये इनका ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि लोगों को अब समझ आ गई है कि ये कहाँ से क्या करना चाह रहे हैं और किसके एजेंडे पर बैठे हैं और कौन इनकी डोरी को हिला रहा है और कैसे ये चल रहे हैं। ये मैं तो कहता हूँ कि इंडिया या इसराइल के एजेंडे पे ये लोग हैं। लेकिन और तो ये पाकिस्तान ना, इमरान खान साहब इस मौजू से भी अपना जो स्टेटमेंट है उन्होंने चेंज कर लिया है। जो वो कहते थे कि अमेरिका की साजिश है या जो भी है, उसके हवाले से अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं गंदा सा लफ्ज़ कहूँगा कि थूक के चाटने की आदत है खान साहब को। ये कहते, जब कुछ कहते हैं सोचते नहीं हैं, जब सोचते हैं तो पता लगता है कि मैंने गलत कहा। कभी अमेरिका के बारे में, कभी आर्मी के बारे में, कभी इदारों के बारे में, कभी ISI के, कभी हमारे किसी जनरल्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो जब इन्हें होश आती है तो इनको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया और मुझे ये कहना नहीं चाहिए था। जैसे अब कंटेनर पे गोलियां चली, गोलियां ये 16 फुट ऊपर खड़े हुए थे, हमने सबने देखा, आपने भी देखा कि मैंने एक इंडियन चैनल पे भी ये कहा था, मैं आज आपके चैनल पे भी कहूँगा कि एक के मुंह पे गोली लगी, एक की टांग पे। या तो खान साहब की टांगें ऊपर थी या उसका मुंह नीचे था, फैसल का, और जितना खून उसको निकला, एक छर्रा, अगर छर्रा लगता भी है तो थोड़ा सा छर्रा खराश लगा करके किया, जैसे उसने अपने कपड़ों को खून में लथपथ किया हुआ था, बोतलें खून की डाल करके मीडिया पे तस्वीरें बनाई, अपने आप को वायरल किया। लेकिन लोगों को समझ आई। अब समझ जब आई है, आप देख लीजिए आप जो इनकी रैली है, जो इनके जलसे हैं, अब उसमें कितने लोग हैं, 5000, 10,000, ये तो लाखों की बात करते थे। अब जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे, मेरा ख्याल सर्दी बहुत ज़्यादा होगी तो लोग इतने होंगे नहीं। हाँ, जो रेंट के लोग ये लेकर के आ रहे हैं, जिनको मुझे मालूम हुआ कि वज़ीराबाद गुजरात में लोगों को पैसे दिए गए 2-2 हज़ार पर पर्सन पर डे, तो जिनको पैसे मिलेंगे उन बेचारों ने तो मजदूरी, या वो पैसे देते हैं तो आप भी तो देते रहे तो नहीं देखें जो जज्बा, तो चलता ये जज्बा जो इनके साथ जज्बा था बच्चों का, वो अब नहीं है। अब जो शऊर वाले लोग हैं वो इनके साथ नहीं है। अब तोड़ फोड़ वाले देखें आप, कभी इनके वजीर असला लहराते हैं, कभी इनका कोई दोस्त असला लहराता है कि हम जो है ना आ रहे हैं, असले के साथ आ रहे हैं, हम मंशियात के साथ आ रहे हैं। तो खुदा हमारी खैर करे इस्लामाबाद की, हमारे पाकिस्तान की, हमारे बच्चों की, हमारी माँ बहनों की, हमारी इमलाक की। तो इस वक्त हुकूमत की पूरी मशीनरी देखें, ना कि हमारी खिदमत में लगे होते हैं इदारे हमारे, इस वक्त हमारी इमलाक को और हमारी जानों को बचाने के लिए वो बेचारे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। मैं अभी देख रहा था, अभी सेक्रेटरीट के आगे से मैं गुजरा हूँ, मैं देख रहा था कि सख्त धूप में हमारी रेंजर, हमारी पुलिस, पंजाब पुलिस, KPK पुलिस, सिंध पुलिस, उन बेचारों का क्या कसूर है? वो लोग जब अपने शहरों से आए हैं, जाहिर सी बात है अपने शहरों को खाली करके आए हैं, वहाँ जो नुकसान होगा वो कौन पूरा करेगा? ड्यूटी कौन करेगा जो वहाँ करनी थी? अगर किसी भी शहर, किसी भी सूबे में क्राइम होते हैं तो मजबूरी में होंगे, मजबूरी में वो बेचारे पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सारी पुलिस तो इस्लामाबाद की बॉर्डर्स पे लगी हुई है। अब ये मजबूरी है, अगर हुकूमत ऐसा ना करे तो पता नहीं खुदा न खास्ता क्या नुकसान करेंगे ये लोग। अच्छा, नहीं शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी मैंने आपसे पहले भी यही सवाल किया था कि ये जो हमारे महंगाई का बहरान है और जो हमारी आवाम है इस वक्त पिस रही है, और दूसरी बात ये है कि ये जो रोड्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, और इमरान साहब का धरना भी अभी शुरू होने वाला है, लॉन्ग मार्च जो है वो इधर इस्लामाबाद पहुंच रहा है 26 को। तो आप उस बारे में अब क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या लाया अमल है और आप लोग क्या सिक्योरिटी के हवाले से उस पार्टी के लिए करते हैं? क्योंकि अगर उन पे अटैक हो चुका है और नाम आप पे लगाया गया है तो इसकी सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे होंगे?
देखिए जहाँ इन पे हमला हुआ, इनकी हुकूमत वहाँ अपनी थी, पंजाब हुकूमत इनकी अपनी थी, सारी टोटल सिक्योरिटी एजेंसीज इनका कंट्रोल किया हुआ था। तो दूसरी बात यह है कि मैंने आपको अभी अर्ज़ किया ना कि ना कि मुल्क को बढ़ाएं आगे हुकूमत के इदारे, वो हमारी और आपकी और हमारी इमलाक की सिक्योरिटी पे लगे हुए हैं इस वक्त। हुकूमत को डिस्टर्ब किया हुआ खान साहब ने, हुकूमत खान साहब की वजह से डिस्टर्ब नहीं है, हुकूमत डिस्टर्ब है हमारी हिफाजत के लिए, हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए। इमरान खान की हिफाजत अब अल्लाह ही करेगा या ये खुद करें अपनी हिफाजत, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इंशाल्लाह इनकी हिफाजत करते रहेंगे, हमारी भी और इनकी भी, सबकी जो भी लोग हैं। लेकिन फिर कहूँगा कि खान साहब इक़्तिदार और मफाद के चंगल से बाहर आइए। अगर खिदमत का जज्बा रखते हैं तो इंतज़ार कीजिए इलेक्शन का, नए इलेक्शन का, टाइम का। जब टाइम पूरा होगा हुकूमत इंशाल्लाह इलेक्शन कराएगी, इलेक्शन तो होने ही होने हैं, तो अपने वक्त पे होंगे। खान साहब आप घर जाइए, लोगों को सुकून करने दीजिए, मुल्क में इंतशार मत फैलाइए, क्योंकि आपको इंतशार खान कहा जा रहा है। अब इंतशार कम होगा तो आवाम सुख का सांस लेगी और महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी, क्योंकि लोग आना शुरू होंगे, पैसा आएगा, कारोबार बढ़ेगा। जब कारोबार बढ़ेगा तो महंगाई महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतना अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हम आपके बहुत बहुत मशकूर हैं। आपका शुक्रिया जी, आपने बुलाया। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नाजरीन, हमारी भी यही ख्वाहिश है कि ये जो मुल्की बहरान जिस वक्त जिसका हम पूरी आवाम जो है शिकार है, और हम लोग परेशानी में इस वक्त कि कैसे इस महंगाई से निपटा जाए, और मुल्की हालात से कभी एक पार्टी कुछ एजेंडा लेकर आ जाती है, कभी दूसरी पार्टी, कभी तीसरी पार्टी। तो मेरे ख्याल से ये पार्टियों से बालातर होकर हमें मुल्क और कौम के लिए सोचना चाहिए कि हम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। हैसियत हम एक नेशन के, जो हम लोग इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, तो हमें चाहिए कि अपने मुल्क के लिए भी हम कुछ काम करना शुरू करें, और अपनी जो वोट है वो एक जायज़ समझते हुए अपने एक ऐसे पार्टी को दिया जाए जो कि काम भी करती हो और कुछ करके भी दिखाए। इसके साथ ही नाजरीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।